Hello friends, this is Team Super Simplified and we are here with another interesting topic in our new series which is 200 plus most important GS topics. तो 9 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया और 9th लेक्चर में हमने पढ़ा था गंगा रिवर सिस्टम के बारे में. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द इंडस रिवर सिस्टम. तो सबसे पहले हमने रिवर बेसिन्स के बारे में देखा था पिछले लेक्चर में. द रिवर्स ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिवर सिस्टम्स, राइट. सो दिस इज अ गंगा रिवर बेसिन जिसमें हमने मेनली गंगा, यमुना, सोन, गंडक, कोसी, इन सारी रिवर्स को यहाँ पे स्टडी किया था, राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द इंडस रिवर सिस्टम और उसके बाद में हम ब्रह्मपुत्र बेसिन देखेंगे. उसके बाद में हम जाएंगे पेनिनसुलर रिवर्स के ऊपर, राइट. सो टुडेज लेक्चर इज डेडिकेटेड टू इंडस रिवर सिस्टम. And let us just have a quick glance on the classification of rivers in India. This we have not covered in the previous lecture. So if we classify India's rivers, so we can classify in two categories basically. So the first category is Himalayan rivers, right? So Himalayan rivers में वो rivers हैं जो snow fed rivers हैं और Himalayan region से originate होती हैं. तो वहाँ पे जो glaciers है Himalayan region में, उनमें जो snow है उसके melt होने से ये rivers जो हैं वो originate होती हैं वहाँ से. So Indus river system, Ganga river system and Brahmaputra river system, all three are Himalayan river systems. उसके बाद में अगर हम आते हैं अपने पेनिनसुला की तरफ, ये जो हमारा डेक्कन प्लेटू वाला जो रीजन है पेनिनसुलर इंडिया. सो पेनिनसुलर इंडिया में हमारे पास दो तरह की रिवर्स हैं, एक है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और दूसरी है हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, राइट. सो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जैसे कि नर्मदा और तापी जो वेस्ट की तरफ मूव करती हैं, राइट. एंड जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जैसे कि जो मेजोरिटी रिवर्स है इंडिया की वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ही हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, राइट. सो ऑल दीज रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, दे आर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, राइट. एंड एक और तरह से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. अनदर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ वाटर डिस्चार्ज कि दीज रिवर्स आर गोइंग एंड डिस्चार्जिंग देयर वाटर इन विच सी और द ओशियन, राइट. सो majority of the rivers in India are draining into Bay of Bengal. So you can see here in this picture, in this diagram, most of the rivers are actually draining into Bay of Bengal, right. So around 77% of the water discharge is happening in Bay of Bengal. So 3/4 of the water is getting discharged into Bay of Bengal. That is what you can say here. So ये जो amount है ये constant नहीं है because river का जो water content है वो fluctuate होता रहता है. But more or less this is the fraction, right. And the rivers draining in Arabian Sea, around 23% of the water discharge is happening there. Okay, so these are the two major classifications here. And another interesting thing what you have to note here is the water divide in India, right. So this is the drainage divide or the water divide which is happening here. So this is a kind of imaginary line what I am drawing here which divides the east flowing and west flowing rivers. So all the rivers which are originating at any point which is on the right side of this particular line will always flow to the east side, right. All these rivers you can see Ganga, Yamuna, Chambal, Son, all these rivers. Then in the southern India also Godavari, Ganga, Krishna, Tungabhadra, Kaveri, all these rivers are east flowing rivers because these are on the right side of this particular water divide. And if you see any river which is on the left side of this water divide will always move towards the west, right. So this is because of the topography or this is because of the physiology of India, right. So physical features are like that. वहाँ का जो terrain है वो इस तरह का है because if you see here you have the Vindhya mountains here and you have the Satpura mountains in the south. There is a valley kind of structure in between where there is a river which is flowing which is Narmada, and similarly there is a Tapi river, right. So the physiography of India also affects to a great extent the direction of flow of these rivers. Let us come to our main subject which is Indus river basin, right. So let us understand the Indus river and its tributaries. So whenever we study the Indus river system, any river system, then we have to basically study about the main river and the various tributaries which are actually coming and contributing into that particular river. So as we saw in the case of Ganga river, Ganga originates in the form of Bhagirathi from the Gangotri glacier and it is a very small stream of water. But as it progresses on its course, there are a lot of tributaries which are coming and merging into it, right. So they are contributing their share of water into the main trunk river. So इस तरह से एक नदी अकेली चलती है आगे और कई नदियां आके उसमें मिलती हैं और इस तरह से वो नदी जो है वो अपना रूप लेती है. So that is how we will see how the river Indus originates, how it travels and which are the rivers along the course which are coming and meeting it, right. So let us start. So first we will go through the map, then we will give you the theory points of these rivers, right. So first we have to see where the river Indus is originating. So this is the region what we discussed in the previous lecture also, the Mansarovar lake region. So this region is full of mountains, full of glaciers, and when the ice in these glaciers is melting it gives rise to several rivers. So there are three main rivers which are originating here, main popular rivers. The first one is Brahmaputra river. It is originating in this region itself and it is flowing towards the eastern direction. Similarly there are two more rivers, like there is one Satluj river here which is originating in the same region and it is flowing towards the northwest. And there is another river which is Indus river what we are going to study which is originating in this region and it is originating at a glacier which is called Bukhar Chu, right. So Bukhar Chu is the name of the glacier
where the Indus River is originating and then it is flowing towards northwest. तो ये रिवर इस तरह से फ्लो करती है, आगे चलती है and when it enters India, इंडिया में जो एंटर होने का जो पॉइंट है यहाँ पर, किस पॉइंट को बोला जाता है? डेमचोक, DEMCHOK। और उसके बाद में रिवर इस तरह से आगे बढ़ती है एंड एक्चुअली इट इज फ्लोइंग बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस। सो हियर इन द नॉर्दर्न साइड देयर इज अ माउंटेन रेंज कॉल्ड कराकोरम एंड इन द सदर्न साइड देयर इज अ लद्दाख माउंटेन रेंज। इन दोनों के बीच में चलते चलते एकदम से लद्दाख रेंज को कट करके ये सदर्न साइड फ्लो होने लगती है, एक टर्न आता है यहाँ पर और फिर ये इस तरह से इसका फर्दर फ्लो है, राइट। सो ये जो टर्निंग यहाँ पे आती है, दिस पॉइंट इज नोन एज दुंगती, राइट। सो इस पॉइंट को बोला जाता है दुंगती एंड देन इट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन। और नाउ इन द नदर्न साइड देयर इज लद्दाख रेंज और इसके जो सदर्न साइड में जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है जस्कर, राइट। सो दिस इज द जस्कर रेंज इन द सदर्न साइड एंड देयर इज अ लद्दाख रेंज ऑन द नदर्न साइड। तो इस तरह से आगे बढ़ती है और फिर यहाँ पर एक सिटी आती है जिसका नाम है लेह, राइट, LEH, लेह। एंड दिस इज लेह सिटी और ये रिवर फर्दर आगे बढ़ती है और इसमें एक ट्रिब्यूटरी आके मर्ज होती है जिसका नाम है श्योक, राइट। सो श्योक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इट इज राइट हैंड ट्रिब्यूटरी बिकॉज सिंस द रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, रिवर का डायरेक्शन इस तरह से है तो श्योक नदी उसके राइट साइड में पड़ेगी, राइट। एंड श्योक इज ओरिजिनेटिंग समवेयर हियर नियर द सियाचिन ग्लेशियर एंड इट इज जॉइंड बाय अनदर रिवर, एक और ट्रिब्यूटरी है श्योक की भी जिसका नाम है नुब्रा, right? So Nubra, Nubra. So Nubra is a tributary of Shyok. So it is a sub tributary of Indus. So Indus में Shyok के मर्ज होने के बाद में Indus और आगे बढ़ती है और यहाँ पर एक टर्न आता है Indus में और ये जो रीजन है इसको बोला जाता है गिलगिट, राइट। और यहाँ पे एक रिवर आके मर्ज करती है Indus से जिसका नाम है गिलगिट रिवर, राइट। सो इस रीजन को गिलगिट बोला जाता है और इस रिवर का नाम जो यहाँ पे आके ट्रिब्यूटरी जो मर्ज कर रही है Indus में उसका नाम भी है गिलगिट, राइट। एंड एक और रिवर है यहाँ पे जस्कर रेंज के पास जो आके इंडस में मर्ज करती है, दिस पर्टिकुलर रिवर व्हाट यू कैन सी हियर, राइट। सो दिस रिवर इज नोन एज जस्कर रिवर, राइट। सो जस्कर इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ Indus and Shyok is the right bank tributary or the right hand tributary of Indus. Okay, लेह के बाद में एक और टाउन यहाँ पे आता है which is known as कारगिल, right? So it also crosses कारगिल। कारगिल से निकलने के बाद में आगे चलती है और गिलगिट रीजन में आती है जहाँ पे उसमें एक और रिवर आके मर्ज करती है जिसका नाम है गिलगिट एंड देन इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान। ओके, इट इज एंटरिंग इनटू पाकिस्तान एंड दिस रीजन ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज खैबर पख्तूनख्वा एंड फर्दर इट फ्लोज लाइक दिस। सो इंडस रिवर इस तरह से मूव कर रही है यहाँ पे पाकिस्तान में और फाइनली इस पॉइंट पर यू कैन सी देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ 5 रिवर्स विच इज कमिंग एंड मीटिंग इट, राइट। सो चिनाब रिवर आपको दिखेगी यहाँ पे, चिनाब रिवर आके यहाँ पे मर्ज करती है इंडस के साथ में, ओके। और इस पॉइंट को बोला जाता है मिठानकोट, लाइक वी हैव पठानकोट इन इंडिया, सिमिलरली देयर इज मिठानकोट इन पाकिस्तान। सो इट मूव्स लाइक दिस आफ्टर दैट एंड इट फाइनली गोज एंड मर्जेस इनटू द अरेबियन सी। तो ये अरेबियन सी में जाके फाइनली ड्रेन करती है नियर कराची, ओके। सो ये है पूरा कोर्स हमारे इंडस रिवर का। उसके बाद में हम आगे देख लेते हैं इसके और कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। So these were the minor tributaries what we have discussed till now. The major tributaries are झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, राइट। सो बेसिकली जब भी हम इंडस रिवर को स्टडी करेंगे तो हमें ये 6 नदियों के बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। कौन सी 6 रिवर्स हैं इंडस रिवर सिस्टम के अंदर? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, और ये इसी सीक्वेंस में है, ठीक है। उसके बाद में हमने इंडस देख लिया, अभी हमें आना पड़ेगा झेलम रिवर के ऊपर। सो लेट अस अंडरस्टैंड द झेलम रिवर। सो झेलम रिवर का ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर है। दिस इज अ प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर विच इज नोन एज अनंतनाग, राइट। और अनंतनाग में एक स्प्रिंग है जिसे कहा जाता है वेरीनाग, राइट। सो दिस इज अ प्लेस नोन एज वेरीनाग और वेरीनाग स्प्रिंग से झेलम का ओरिजिन होता है और इस तरह से वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। और इसी में आगे चलने के बाद एक और यहाँ पे एक लेक मिलती है जिसका नाम है डल लेक, राइट, डल झील। सो दिस इज द डल लेक और डल लेक के पास में ही है श्रीनगर, ओके। सो श्रीनगर विच इज डिनोटेड हियर बाय एस। So this town is also located on the banks of झेलम रिवर। और फर्दर श्रीनगर से आगे जब ये रिवर बढ़ती है तो यहाँ पे एक लेक आती है जो कि इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जिसे कहा जाता है वुलर लेक या बुलर लेक, राइट। और इस लेक को झेलम रिवर ही फीड करती है, मतलब ये जो झेलम रिवर है यही इसी का पानी इस लेक में एंटर करता है और फिर दूसरे छोर से ऑन फ्रॉम द अदर एंड दिस वुलर लेक से निकलने के बाद ये नदी इस तरह से ट्रेवल करती है और फिर काफी दूर तक ये रिवर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ पे फॉर्म करती है और फिर उसके बाद में ये पाकिस्तान में इस तरह से एंटर कर जाती है, राइट। एंड आगे चलने के बाद में ये चिनाब रिवर से मीट करती है। चिनाब रिवर हम अगला देखेंगे चिनाब रिवर के बारे में।
See, there is another important point which we would like to emphasize कि ये जो border हम देख रहे हैं यहाँ पे जो dotted line है, this is the international boundary of India and this is the actual territory of India. This is denoting the actual territory of India. But this entire territory is not in India's control. तो इसमें से काफी सारा जो region है वो पाकिस्तान के कब्जे में. This is known as Pak occupied Kashmir, right? There is a line which is very famous line which is known as LOC or line of control, right? So that is what I am drawing here. So this is the rough sketch of line of control. So this goes till here and this point is known as NJ9842, which is the point where the Siachen glacier starts. So this is the Siachen glacier. This triangular region here is the Siachen glacier. Okay. So हुआ क्या है कि ये जो इसके ऊपर इस लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर का जो पार्ट है, ये सारा जो पार्ट है, this is POK, which is Pak occupied Kashmir. So this Gilgit region is also in Pakistan only under Pak occupied Kashmir. It is actually the territory of India. भारत का ही पार्ट है, लेकिन अभी पाकिस्तान उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है. So when Jhelum river takes a turn here, it passes through Baramulla and then it passes through Uri, which is very near to this LOC line of control. और उसके बाद में उरी को क्रॉस करने के बाद ये रिवर जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में यहाँ पर एंटर कर जाती है, राइट. एंड उरी में हमारे पास एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे. दीज वर सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट द झेलम रिवर. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रिवर. लेट अस कम टू चिनाब. सो चिनाब का जो ओरिजिन है वो होता है हिमाचल प्रदेश में, राइट. सो दिस इज अ प्लेस वेयर द रिवर ओरिजिनेट्स. और हिमाचल प्रदेश में दो नदियां जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं. एक का नाम है चंद्रा और दूसरी का नाम है भागा. सो चंद्रा और भागा दोनों को मिला के चंद्रभागा रिवर बनती है. और वही रिवर जब आगे चलती है और तंडी करके एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, तंडी, वहां पे ये दोनों रिवर्स मिलती हैं और वहां से आगे चलने पर इसको चिनाब कहा जाता है, राइट. और उसके बाद में ये रिवर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में एंटर कर जाती है आफ्टर हिमाचल प्रदेश. ओके. तो चिनाब रिवर इस तरह से आगे बढ़ती है और फिर उसके बाद में डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, रामबन और अखनूर होते हुए ये इस तरह से पाकिस्तान में यहाँ पे एंटर करती है. एंड चिनाब और झेलम ये जो दोनों रिवर्स हैं ये फिर यहाँ पर झांग करके एक जगह है, झांग, वहां पे आके पाकिस्तान में दोनों इकट्ठी होती हैं, उनका संगम होता है, दे गेट मर्ज्ड, राइट. सो दिस इज द चिनाब रिवर फ्लोइंग हियर. वी विल डिस्कस एडिशनल पॉइंट्स अबाउट दीज रिवर्स इन द कमिंग स्लाइड्स आल्सो, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू, राइट. सो हाउ द कोर्स ऑफ दीज रिवर्स इज लाइक एंड व्हाट आर द मेजर सिटीज व्हिच आर लोकेटेड हियर, राइट. सो व्हिच आर द मेजर लैंडमार्क्स. अब चिनाब रिवर कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास आएगा रावी. रावी जो रिवर है वो यहाँ पर लोकेटेड है और रावी का जो ओरिजिन है वो यहाँ पे हिमाचल में ही होता है. हिमाचल में 3 रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं एक्चुअली इन सब में से. एक है आपकी चिनाब रिवर, दूसरी रावी और तीसरी ब्यास, राइट. सो ये 3 रिवर्स जो है वो हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होंगी. और इंडस जो है वो तो तिब्बत रीजन से हो रही है और झेलम जो है वो हमने देखा वो जम्मू एंड कश्मीर से ही, वेरीनाग स्प्रिंग से नियर अनंतनाग इट इज गेटिंग ओरिजिनेटेड. और सतलुज जो रिवर है वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इंडस और सतलुज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदीज जो है वो मानसरोवर लेक के आसपास ही ओरिजिनेट होती हैं, राइट. सो दिस इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ दीज रिवर्स. सो लेट अस कम टू द रावी रिवर. सो रावी रिवर जो है वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है और जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होती है उसका नाम है बड़ा बंगाल, राइट. सो दिस इज द प्लेस वेयर इट इज गेटिंग ओरिजिनेटेड एंड देन फर्दर इट फ्लोज लाइक दिस. और उसके बाद में ये रिवर जो है वो पठानकोट से होते हुए पंजाब में एंटर करती है, राइट, इन द पठानकोट एरिया. और उसके बाद में ये पाकिस्तान में इस तरह से यहाँ पे एंटर कर जाती है आफ्टर फॉर्मिंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. आफ्टर दैट इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान और यहाँ पे एक टाउन है पाकिस्तान में विच इज नोन एज लाहौर. ओके. सो दिस इज लाहौर ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर. और उसके बाद में फर्दर रावी रिवर इस तरह से मूव होती है और फिर चिनाब में जाके मर्ज होती है, राइट. सो द चिनाब इज एक्चुअली द मेन रिवर हियर. चिनाब में पहले झेलम मर्ज होती है, उसके बाद चिनाब और आगे बढ़ती है तो उसमें रावी रिवर मर्ज हुई है और चिनाब फिर और आगे बढ़ेगी तो उसमें आके सतलुज रिवर मर्ज होगी. और ये 5 नदियों का पानी इकट्ठा करके जब चिनाब आगे बढ़ेगी तो कुछ समय के बाद, कुछ दूरी के बाद वो जाके इंडस रिवर में मर्ज हो जाएगी, सिंधु नदी में मर्ज हो जाएगी, राइट. सो क्योंकि चिनाब जो है वो 5 नदियों का पानी कैरी करती है, चिनाब, झेलम, रावी और सतलुज और ब्यास, राइट. इस वजह से इसे पंच नद भी कहा जाता है. तो ये जो स्ट्रीम है जो 5 नदियों का पानी कैरी कर रही है इसको इस रिवर स्ट्रीम को हम पंच नद भी कहते हैं. और ये पंच नद जो है वो फाइनली जाके इंडस में मर्ज होता है और फिर इंडस जो है वो जाके अरेबियन सी में डिस्चार्ज होती है, राइट. सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड रावी रिवर आल्सो. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट रिवर व्हिच इज बियास, राइट. सो बियास इज आल्सो ओरिजिनेटिंग इन हिमाचल प्रदेश ओनली एज वी हैव डिस्कस्ड, राइट. सो दिस इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ बियास. और ब्यास का जो ओरिजिन है उसको कहा जाता है ब्यास कुंड, राइट. सो ब्यास कुंड से ये रिवर ओरिजिनेट होती है. उसके बाद में ये रिवर इस तरह से आगे बढ़ती है, हिमाचल प्रदेश से पंजाब में एंटर होती है एंड इट रीचेस
टू अ पॉइंट विच इज नोन एज हरिके, राइट। सो हरिके जो पॉइंट है वहां पर आकर वो सतलज में मर्ज हो जाती है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट रिवर आउट ऑफ दीज 6 रिवर्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, राइट। सो इन सब में से सबसे छोटी नदी यही है, और इन सभी 6 रिवर्स में से ये एक इकलौती रिवर है जो इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही एक रिवर में मर्ज होकर वो खत्म हो जाती है, राइट। बाकी की जो भी नदियां हैं, जो यहाँ पे बाकी की जो 5 नदियां हैं, वो सारी की सारी या तो दूसरी जगह से ओरिजिनेट होकर इंडिया में आती हैं या फिर आगे पाकिस्तान में एंटर होती हैं, राइट। सो दिस इज द ओनली रिवर विच इज ओरिजिनेटिंग इन इंडिया एंड गेटिंग मर्ज्ड इनटू अनदर रिवर विच इज सतलज विद इन इंडिया इटसेल्फ, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल दीज 6 रिवर्स। तो दिस इज अबाउट द ब्यास रिवर, राइट। और ब्यास और रावी के बीच में ही यहाँ पर एक शहर लोकेटेड है जिसको कहा जाता है अमृतसर। रावी और ब्यास के दोआब के बीच में, सो व्हाट इज दोआब? सी देयर इज अ टर्म कॉल्ड पंजाब। तो पंजाब को पंजाब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 5 नदियों का राज्य है। इट इज अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स। सो पंज मीन्स 5 एंड आब मीन्स वाटर, सो इट इज अ लैंड ऑफ 5 waters और 5 rivers, that is why it is known as Punjab. And which are those 5 rivers? Those are Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj, right? So these are the 5 rivers because of which Punjab is called Punjab. उसी तरह से कभी भी 2 नदियों के बीच का जो लैंड होता है, राइट, इट इज वेरी फर्टाइल लैंड, एलुवियल सॉइल वहां पे मिलती है, और इस रीजन को हम कहते हैं दोआब, राइट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ जेनरिक टर्म विच वी यूज फॉर द लैंड विच इज लोकेटेड बिटवीन 2 पर्टिकुलर रिवर्स। जैसे कि हमारे पास यहाँ गंगा और यमुना के बीच का जो रीजन है, राइट, सो यमुना इज फ्लोइंग लाइक दिस एंड गंगा इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो ये जो बीच का जो सारा रीजन है, इसको हम गंगा यमुना दोआब के नाम से भी जानते हैं, राइट। सो दिस इज अ जेनरिक टर्म विच इज यूज्ड फॉर द रिवर्स। उसी तरह से रावी और ब्यास के दोआब के बीच में अमृतसर यहाँ पे लोकेटेड है, राइट। अब हम चलते हैं another important river and the last river what we are going to discuss today, Satluj river, right। so Satluj river जो है वो ओरिजिनेट होती है मानसरोवर लेक के पास ही एक और लेक है जिसका नाम है राक्षस ताल या फिर रकास लेक, राइट। सो राक्षस ताल से ये ओरिजिनेट होती है और उसके बाद इस तरह से तिब्बत से होते हुए इंडिया में एंटर करती है, और जिस पॉइंट से इंडिया में ये एंटर करती है उस पॉइंट को कहा जाता है शिपकीला पास, राइट। सो दैट पॉइंट इज नोन एज शिपकीला, राइट। तो जो भी माउंटेन पासेस होते हैं एक्चुअली उनके लास्ट में ना ला लगा होता है, जैसे नाथूला, शिपकीला, राइट, बड़ा ला, छाला, सो ऑल दीज आर ला। सो ला का मतलब ही होता है पास, राइट। वहां की लोकल लैंग्वेज में ला का मतलब होता है पास, रोहतांग ला, रोहतांग पास, राइट। सो इट ओरिजिनेट्स इन दिस राक्षस ताल एंड देन इट एंटर्स इनटू इंडिया थ्रू शिपकीला पास, और शिपकीला पास से एंटर होने के बाद ये फर्दर हिमाचल में ट्रेवल करते हुए पंजाब में एंटर करती है, और हिमाचल में ये शिमला के पास से पास करती है, शिमला यहाँ पर लोकेटेड है नियर बाई, और फिर उसके बाद में ये पंजाब में एंटर करने से पहले हिमाचल के अंदर ही एक डैम है यहाँ पर जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जिसे कहा जाता है भाखड़ा डैम, राइट। सो इट इज नोन एज भाखड़ा डैम, भाखड़ा डैम विच इज लोकेटेड इन द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में ये रिवर एंटर करती है पंजाब में, और पंजाब में ही एक जगह है नंगल, राइट, और नंगल में एक और बराज है। इट इज नॉट अ डैम, इट इज अ बराज, राइट। और यही जो एक डैम और एक बराज का जो सिस्टम है इसी को कहा जाता है भाखड़ा नंगल। सो भाखड़ा नंगल एक्चुअली इज नॉट अ सिंगल डैम, इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 डैम्स। एक है भाखड़ा में जो कि है हिमाचल प्रदेश में, जो कि मेन डैम है, बड़ा डैम है, और नंगल में एक बराज है, छोटा डैम है, और दिस एंटायर सिस्टम इज नोन एज भाखड़ा नंगल, ओके। और भाखड़ा डैम जो है उसका जो रिजर्वायर है उसको कहा जाता है गोविंद सागर, राइट। और इंडिया का 3rd लार्जेस्ट रिजर्वायर है ये, क्योंकि जब भी कोई डैम बनता है तो उसके पीछे एक रिजर्वायर में पानी इकट्ठा होता है और फिर डैम के जो गेट्स होते हैं उसको कंट्रोल करके खोला जाता है और ये पानी रिलीज किया जाता है, और इस वाटर के रिलीज से जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द टर्बाइंस, राइट। सो ये जो पीछे जो रिजर्वायर फॉर्म हो जाता है ये 3rd लार्जेस्ट इंडिया में। सबसे बड़ा जो रिजर्वायर है वो लोकेटेड है नर्मदा नदी के ऊपर एमपी में, जिसे इंदिरा सागर रिजर्वायर बोला जाता है, और उसके बाद में दूसरा है नागार्जुन सागर विच इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, तीसरा है भाखड़ा डैम का जो रिजर्वायर है गोविंद सागर, और चौथा है श्रीशैलम विच इज ऑल्सो लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, राइट। सो दीज आर द 4 लार्जेस्ट रिजर्वायर्स। उसके बाद में सतलुज रिवर जो है वो आगे बढ़ती है और जाके ब्यास में मर्ज होती है। सो ब्यास नदी और सतलुज यहाँ पे मिलती हैं और इस जगह को कहा जाता है हरिके, राइट। सो दिस इज नोन एज हरिके वेटलैंड्स एंड दिस इज अ रामसार साइट, एंड यू हैव टू टेल इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू मीन बाय रामसार साइट एंड हाउ मेनी रामसार साइट्स आर देयर इन इंडिया, ओके। एंड उसके बाद में ये रिवर जो है आगे बढ़ती है और फिर ये पाकिस्तान में एंटर करती है इस तरह से, एंड देन सतलुज मर्जेस विद चिनाब, और चिनाब से मर्ज होने के बाद में जो फाइनली चिनाब की जो स्ट्रीम है वो इंडस से मर्ज होती है इस तरह से, राइट। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि जब ब्यास और सतलुज यहाँ पे मिलते हैं हरिके में, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट एक कैनाल बनाई गई है, राइट। तो जिस कैनाल से राजस्थान में इरिगेशन वगैरह पॉसिबल हो पाया, एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया, और
ये जाती है जैसलमेर तक और इस कैनाल को बोला जाता है इंदिरा गांधी कैनाल एंड दिस इज वाई इरिगेशन इज पॉसिबल इन राजस्थान, राइट। सो यहाँ पर एक टाउन है विच इज कॉल्ड श्री गंगानगर एंड दिस इज अ वेरी प्रॉस्परस टाउन आफ्टर बिल्डिंग इंदिरा गांधी कैनाल। सो इस पूरे रीजन में एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से, राइट। So this was about the main rivers. Now let us see some of the points about these. So देखिए अभी आपको रिवर्स का आइडिया मिल गया, तो हम एक ट्रीटी के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ नोन एज द इंडस वाटर ट्रीटी विच वॉज साइंड इन 1960, राइट। सो 1960 में एक ट्रीटी साइन हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एंड इट वॉज मीडिएटेड बाई वर्ल्ड बैंक और 8 साल का डिस्कशन हुआ, उसके बाद में ये ट्रीटी सामने आई एंड इस ट्रीटी में जो कंक्लूड किया गया वो बात क्या थी, ये थी कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडिया के जो कि हैं इंडस, झेलम एंड चिनाब, सो आउट ऑफ दी 6 रिवर्स द 3 वेस्टर्न रिवर्स विल बी गिवन टू पाकिस्तान, उनका पानी जो है वो कंप्लीटली पाकिस्तान यूज करेगा और जो ईस्टर्न 3 रिवर्स हैं रावी, ब्यास और सतलुज, उनका जो वाटर है वो इंडिया यूज करेगा। सो ये जो 6 रिवर थे हमने जो पढ़े IGCRBS, सो दीज 3 रिवर्स, आउट ऑफ दीज 3 रिवर्स वेस्टर्न 3 रिवर्स आर गिवन टू पाकिस्तान एंड ईस्टर्न 3 रिवर्स आर गिवन टू इंडिया। सो दैट इज व्हाट इंडस ट्रीटी इज ऑल अबाउट। बट हम इंडस का पानी फिर यूज नहीं कर सकते हैं क्या? वी कैन यूज इट, वी कैन यूज द वाटर ऑफ इंडस टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द वाटर फॉर इरिगेशन, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो वाटर है वो डाइवर्ट किया जाए और फिर जो पाकिस्तान का जो वाटर कंटेंट है वो कम हो किसी भी तरीके। सो दैट इज अ टर्म विच इज देयर इन द इंडस वाटर ट्रीटी एंड देयर इज अ परमानेंट बॉडी विच इज सेट अप विच इज कॉल्ड इंडस वाटर कमीशन to solve these kind of disputes, right? So this is about the Indus water treaty. So first is our Indus river which is of the length of 3180 किलोमीटर, तो ये टोटल लेंथ है इसकी। तो ये गंगा नदी से भी बड़ी नदी है। सो गंगा रिवर जो है उसकी लेंथ कितनी हमने देखी थी 2525 किलोमीटर, बट इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज इंडस जो है वो पूरी की पूरी इंडिया में नहीं बहती है ना, दैट इज द रीजन इंडस इज नॉट द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, बट द टोटल लेंथ अगर देखी जाए तो उस हिसाब से 3180 किलोमीटर जो है वो इंडस की टोटल लेंथ है एंड इट मेक्स इट लार्जर देन गंगा। उसके बाद इसका जो ओरिजिन है वो हमने देखा बुखारचू ग्लेशियर में है नियर मानसरोवर लेक। इसका एंशिएंट नेम है सिंधु और हिंदुस्तान का जो नाम है हमारे देश का वो सिंधु से आता है, राइट। तो इंडस के जो वेस्टर्न साइड में जो लोग रहते थे वो लोग सिंधु का नाम ठीक से नहीं ले पाते थे, दे प्रोनाउंस स एज हा, सो सिंधु का बन गया हिंदू और हिंदू से बन गया हिंदुस्तान। एंड जो हमारा इंग्लिश नेम है इंडिया, दैट इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम इंडस रिवर, राइट। सो दिस हैज गिवन द नेम ऑफ आवर कंट्री इटसेल्फ and it enters India through Ladakh and it enters Pakistan through a hairpin bend of Nanga Parbat and it finally joins the Arabian Sea and India uses 20% of its water as per the Indus Water Treaty of 1960 and Himalayan rivers are antecedent rivers. So what is an antecedent river? Antecedent river का मतलब ये होता है कि जो लैंडफॉर्म वहां पर है, जैसे हिमालय जो है वो पर्वत है, बट इतने बड़े जो पर्वत हैं उनके आने से पहले यहाँ पर रिवर थी, राइट। सो हिमालयस की जो फॉर्मेशन है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, वो हम किसी एक अलग लेक्चर में उसको देखेंगे, टेक्टोनिक एक्टिविटी से कैसे वहाँ पे हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, राइट। वहाँ पे एक सी हुआ करता था, तो समुद्र की जगह पे हिमालय कैसे पैदा हो गया, सो दैट वी विल स्टडी इन अनदर लेक्चर। सो जिस तरह से ये लैंड धीरे धीरे राइज हुआ और हिमालयाज बने, उसके पहले ये रिवर थी, तो जैसे जैसे लैंड फॉर्म राइज होता रहा उसी हिसाब से रिवर जो थी वो उस लैंड फॉर्म को कट भी करती रही और अपना एक रास्ता बनाती रही। So these rivers are present before the formation of the landform on which they are actually traveling, right? So that is why these are known as antecedent rivers. So Himalayan rivers जो है mainly antecedent rivers हैं और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हमने देख ली। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हमने देखी थी जस्कर है, राइट, और उसके बाद में पंचनद, जो 5 नदियां मिलके इसमें मर्ज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ चिनाब, दैट इज पंचनद, दैट इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो थी वो थी श्योक और गिलगित, राइट। और हुंजा जो है वो गिलगित की ट्रिब्यूटरी है और जो न्यूब्रा है वो श्योक की ट्रिब्यूटरी है। सो दीज आर द सब ट्रिब्यूटरीज। सो दिस इज अबाउट द इंडस रिवर एंड द इंडस वाटर ट्रीटी। नाउ लेट अस सी द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस विच आर झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज। सो झेलम को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो झेलम जो रिवर है उसकी टोटल लेंथ है 725 किलोमीटर और उसका जो एंशिएंट नेम है, आपको एंशिएंट नेम भी याद रखना है बिकॉज ये जो टॉपिक है ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में कॉमन है, तो उनके एंशिएंट नेम पूछे जाते हैं। तो वितास्ता इज द एंशिएंट नेम ऑफ झेलम, जो ऋग्वेद में हमें नाम मिलता है इस नदी का वो है वितास्ता। और जो ग्रीक हैं वो इस नदी को कहते थे हिडेस्पस, राइट। बट ग्रीक लोगों ने इसका नाम क्यों दे दिया? बिकॉज देयर इज एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट दैट वी विल सी, राइट। इसका जो ओरिजिन है वो हमने देखा वेरीनाग में है, कश्मीर वैली में नियर अनंतनाग, एंड उसके बाद इसका जो माउथ है, मतलब इसका जो एंड पॉइंट है, दैट इज चिनाब रिवर। ये जाके फाइनली चिनाब रिवर में मिलती है नियर झांग और नियर त्रिम्मू इन पाकिस्तान एंड इट फ्लोज नॉर्थवर्ड इनटू वुलर लेक। वुलर लेक को फीड करती है। वुलर लेक जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है
right? And Srinagar is located on Jhelum River, and it takes a hairpin bend southwards at Muzaffarabad and enters Pakistan. And इसकी जो tributaries हैं, those are Lidar, Neelam. Neelam is also known as Kishan Ganga. We will see this. And there is Sindh, which is also a tributary. और उसके बाद में जो इसके ऊपर लेक है वो है डल लेक. हमने देखा श्रीनगर के पास डल लेक लोकेटेड है. देन वी हैव वुलर लेक एंड देयर इज मानसबल लेक, राइट? और हिडास्पस नाम यहाँ पे कैसे पड़ा, दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग नो. सो 326 बीसी में, 326 ईसा पूर्व में, अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया. अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने इंडिया पे अटैक किया एंड ही डिफीटेड पोरस. पोरस वाज द किंग इन इंडिया, राइट? सो इन दैट रीजन, तो उस जगह का राजा था पोरस. और ये जो अटैक हुआ था वो झेलम के बैंक्स पे हुआ था, राइट? सो ये भी कई बार आपसे पूछा जाएगा कि अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया एंड ही अटैक्ड पोरस ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर. तो वो कौन सी रिवर है? झेलम, जिसको ग्रीक अपनी भाषा में बोलते थे हिडास्पस, राइट? सो दिस नेम आल्सो यू हैव टू रिमेंबर, हिडास्पस, वितास्ता और झेलम. इन तीनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है. तो उसने पोरस को डिफीट किया और वहां पे एक सिटी बसाई जो आज झेलम के नाम से प्रसिद्ध है. झेलम रिवर भी है, झेलम सिटी भी है. और उस टाइम जो उसने नाम दिया वो दिया ब्यूसी फेला उस सिटी को, राइट? जिसको हम आज झेलम के नाम से जानते हैं. उस सिटी को उसने नाम दिया ब्यूसी फेला. और वो नाम जो उसने दिया वो उसने अपने घोड़े के नाम पर दिया. ब्यूसीफेलस वाज द नेम ऑफ द हॉर्स ऑफ अलेक्जेंडर. सिकंदर के घोड़े का नाम था ब्यूसीफेलस, और उसके नाम पर उसने एक शहर बसाया और उसी शहर को हम आज झेलम सिटी के नाम से जानते हैं. और अलेक्जेंडर जो था वो पोरस को हराने के बाद और आगे बढ़ा, झेलम रिवर से और आगे बढ़ा. तो झेलम के बाद कौन सी रिवर आती है? चिनाब. चिनाब उसने क्रॉस कर लिया, राबी भी उसने क्रॉस कर लिया. उसके बाद में अगली रिवर आती है ब्यास. तो ब्यास रिवर पे आके उसकी सेना जो थी वो हिम्मत हार गई. उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए एंड देन दे रिटर्न कि भाई इतनी रिवर्स तो हम पार नहीं कर सकते. तो ये यहाँ से रिटर्न हो गए. तो ब्यास वॉज अ रिवर फ्रॉम वेयर द ग्रीक आर्मी रिट्रीटेड. और झेलम वो रिवर है जहाँ पे पोरस के साथ में अलेक्जेंडर का युद्ध हुआ था, राइट? दिस यू हैव टू रिमेंबर. और अलेक्जेंडर वापस जाता है इंडिया से 323 बीसी में. 3 साल के बाद ही उसकी मौत हो जाती है, राइट? ही डाइज. और इंडिया में भी सीन चेंज हो जाता है उसके बाद 322 बीसी में, आई थिंक. चंद्रगुप्त मौर्य अपना शासन जो है वो स्थापित करता है, मौर्य वंश की स्थापना करता है. नंद वंश का अंत होता है धनानंद के अंत के साथ, राइट? और अलेक्जेंडर जब इंडिया से वापस जाता है तो अलेक्जेंडर अपना एक जनरल छोड़ के जाता है. उस जनरल का नाम होता है सेल्यूकस निकेटर. और सेल्यूकस निकेटर का ही एक डिप्लोमेट होता है मेगास्थनीज, जो इंडिया में आता है चंद्रगुप्त के कोर्ट में और एक बुक लिखता है जिसका नाम था इंडिका. और इंडिका काफी फेमस है. उसमें हमें उस टाइम के सोशियो इकोनॉमिक लाइफस्टाइल वो सारी चीजें हमें पता चलती हैं, राइट? दिस वॉज अबाउट झेलम रिवर. झेलम रिवर के ऊपर एक किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो भी लोकेटेड है. दिस इज अ डैम. दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड. और उरी जो रीजन है जो हमने डिस्कस किया था वहां पर भी एक डैम लोकेटेड है. 480 मेगावाट की कैपेसिटी है उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, राइट? सो दिस इज अ ट्रैक ऑफ इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर इंडिया किस तरह से आया, तो ये उसका पूरा पूरा ट्रैक है. वो ये सारे एरिया को जीतता हुआ, हर जगह युद्ध करता हुआ फाइनली ही रीच्ड तक्षशिला. और तक्षशिला से आगे बढ़ते हुए वो आया यहाँ पर हिडास्पस रिवर, मतलब झेलम के पास, राइट? और ब्यूसी फैला, ये उसने सिटी यहाँ पे बसाई थी. उसके बाद में वो फिर आगे बढ़ा और वो गया हाइफेसिस रिवर तक. हाइफेसिस रिवर इज द नेम ऑफ ब्यास. तो ग्रीक नेम जो ब्यास का है वो हाइफेसिस. तो ब्यास रिवर से वो वापस यहाँ पे रिट्रीट कर गई उसकी आर्मी, और उसके बाद वो भारत को छोड़ करके इस तरह से वापस चला गया. और वापसी में अगले 3 साल में उसकी मलेरिया से मौत हो जाती है एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 32 इटसेल्फ. तो फिलिप का बेटा जो मैसेडोनिया से आया था विश्व विजय करने के लिए, वो एक मच्छर के काटने से मर जाता है, राइट? Now let us see some of the lakes which are located on the Jhelum River. So 2 lakes हैं मेन जो झेलम रिवर पे लोकेटेड है. हमने देखा था वुलर लेक जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में, which is located in the बांदीपुरा district, and it was formed due to tectonic activity, राइट? सो टेक्टोनिक एक्टिविटी मतलब जो अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि हिमालयाज देमसेल्व्स आर फॉर्म्ड थ्रू टेक्टोनिक एक्टिविटी, राइट? सो जो अगर माउंटेन फॉर्म हो सकते हैं तो कोई कैविटी भी फॉर्म हो सकती है, कोई क्रेटर भी फॉर्म हो सकता है जो आके चल के एक लेक का फॉर्म ले लेता है, राइट? सो दिस इज फेड बाय द झेलम रिवर. झेलम रिवर इसको फीड करता है. एंड देयर इज अ टुलबुल प्रोजेक्ट, नेविगेशन प्रोजेक्ट विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन देयर. एंड डल लेक जो दूसरी है फेमस लेक जो कि झेलम के पास लोकेटेड है इन श्रीनगर, and it is a freshwater lake in Srinagar, and there are 2 gardens located there. 2 बाग हैं मुगल एरा के, शालीमार और निशात, राइट? शालीमार बाग जो था वो जहांगीर ने बनाया था फॉर हिज बेगम, फॉर हिज वाइफ नूरजहां. एंड आसिफ खां जो नूरजहां का भाई था उसने नूरजहां के लिए बनाया निशात बाग, राइट? एंड डल लेक जो है वो अपने शिकारा राइड और हाउस बोट्स के लिए फेमस है. दिस टाइप ऑफ स्मॉल बोट्स आर नोन एज शिकारा, राइट? एंड लोटस कल्टीवेशन के लिए भी फेमस है, फिशिंग के लिए फेमस है. एंड दीज आर द गार्डन्स, मुगल गार्डन्स, शालीमार एंड निशात बाग. एंड इन द फ्रंट यू कैन सी हियर देयर इज डल लेक लोकेटेड, राइट?
नाउ लेट अस कम टू द किशन गंगा प्रोजेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो किशन गंगा प्रोजेक्ट काफी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि पाकिस्तान को ये प्रोजेक्ट हमारा पसंद नहीं आया है एंड इट वेंट टू इंटरनेशनल फोरम्स कंप्लेनिंग अबाउट इंडिया कि इंडिया क्या कर रहा है, राइट। सो रीजन क्या था उसका? देखिए, जो हमने देखा कि इंडस, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियां जो हैं वो पाकिस्तान का उसमें दे विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय पाकिस्तान एंड आरबीएस, रावी, ब्यास एंड सतलज विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया। सो वी हैव द किशन गंगा रिवर फ्लोइंग लाइक दिस। ये किशन गंगा रिवर इस तरह से फ्लो होकर यहाँ पे आ रही है और फाइनली कहाँ मीट हो रही है? झेलम में। और झेलम कैसे आ रही है? झेलम इज फर्स्ट गोइंग टू वुलर लेक और वुलर लेक के दूसरे एंड से ये झेलम रिवर इस तरह से आ रही है और दोनों फाइनली मर्ज होकर पाकिस्तान में जा रहे हैं एज अ झेलम रिवर इटसेल्फ, राइट। सो किशन गंगा और द नीलम रिवर इज द एक्चुअली ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, राइट। सो झेलम में इस तरह से आ रही है। तो व्हाट इंडिया डिड इज, यहाँ पे एक डैम बना दिया गया ऑन द नीलम रिवर और द किशन गंगा रिवर और पानी को डाइवर्ट किया गया टुवर्ड्स झेलम और बीच में एक पावर हाउस बना दिया गया। एक टनल के थ्रू वाटर बहुत स्पीड से जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और जो पानी होगा वो वापस यहाँ पे चला जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वाटर डाइवर्ट करके कहीं और भेज दिया गया। झेलम की ही ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा और फाइनली अगर ये डैम नहीं भी बनता तो ये पानी आगे चल के झेलम में ही मिलना था, बट इसको डाइवर्ट करके यहाँ से झेलम में ही भेजा गया। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? देयर इज एक्चुअली नो प्रॉब्लम, बट स्टिल पाकिस्तान वेंट टू इंटरनेशनल फोरम्स एंड ऑल कंप्लेन अबाउट इंडिया, बट द वर्डिक्ट केम इन इंडियाज फेवर ओनली और डैम में छोटे से माइनर मॉडिफिकेशंस कराए गए। बट उसके बाद में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ और 2018 में इसको कमीशन किया गया एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड आल्सो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट। एंड इट इज एक्चुअली अ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, रन ऑफ द रिवर। सो ये यूपीएससी मेंस में 2 या 3 साल पहले पूछा जा चुका है, रन ऑफ द रिवर। सो व्हाट इज द रन ऑफ द रिवर? देखिए, जो नॉर्मल डैम्स होते हैं उसमें क्या होता है, हमने पहले भी देखा था कि एक रिवर का जो पानी होता है, रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है, वहां पे आप डैम बना देते हैं और पानी को ब्लॉक कर देते हैं, राइट। उससे क्या होता है, पानी ये पीछे पूरा इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। सो दिस क्रिएट्स अ रिजर्वायर। उसके बाद में जो फ्लड गेट्स होते हैं यहाँ पे, यू हैव द कंट्रोल ऑफ इट। सो आपको जो गेट खोलना होता है, जितना पानी रिलीज करना होता है, आप उसको रिलीज करते हैं। तो आगे जो पॉपुलेशन है, आगे जो स्ट्रीम है, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेटर ऑफ द गेट, राइट। सो अगर ये जो डैम ऑपरेट कर रहा है आदमी, उसके हाथ में फिर इसका कंट्रोल आ गया कि जो आगे के जो लोग हैं, राइट। सो दैट इज वाई पाकिस्तान सेड कि ये जो अगर डैम बन जाएगा तो उससे क्या होगा कि इस तरह से हमारा पानी जो है वो कंट्रोल कर लिया जाएगा। बट रन ऑफ द रिवर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कोई रिजर्वायर नहीं बनाया जाता, पानी को स्टोर नहीं किया जाता है और कंट्रोल नहीं किया जाता है, बस पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है सो दैट टर्बाइंस कैन रन, राइट। पानी को एक स्पीड मिले और काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकें। सो दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर नोन एज द रन ऑफ द रिवर। सो दे डोंट हैव अ reservoir actually, and if they have also, it will be a very small pond kind of reservoir, right. So बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर इसमें नहीं होते हैं। So that is the run of the river project. सो ट्रांस बाउंड्री जो रिवर्स होती हैं जनरली उसमें ये सब चीजें प्रेफर की जाती हैं। एंड ट्रांस बाउंड्री रिवर इज अ रिवर विच फ्लोज फ्रॉम वन कंट्री टू अदर और वन स्टेट टू अदर। एंड लेट अस कम टू द नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी विच इज चिनाब। चिनाब जो है वो 960 किलोमीटर उसकी लेंथ है एंड उसका जो एंशिएंट नेम है दैट इज अश्किनी विच इज प्रेजेंट इन ऋग्वेदा एंड इट्स ओरिजिन इज इन बाड़ालाचाला पास इन हिमाचल प्रदेश एंड इट्स माउथ इज झेलम। तो ये झेलम में आके मिलती है नियर त्रिम्मू इन पाकिस्तान। एंड ये जो है स्ट्रीम वो हमने देखा था चंद्रा और भागा, 2 रिवर्स के मिलने से चंद्रभागा जो स्ट्रीम है वो आगे बढ़ती है, राइट। And after J&K it enters Pakistan and Jhelum river merges into Chenab at Trimmu, this we have seen। और फाइनली जो मर्ज जो स्ट्रीम है वो पूरी की पूरी वो पंचनद जो है वो जाके इंडस में मिलता है मिठानकोट में, दिस वी हैव सीन, राइट। और जो इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं चिनाब के ऊपर, 2000 बागलीहार डैम, द सलाल डैम, दूलहस्ती डैम। सो ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं और पंचनद जो हम बोल रहे हैं वो 5 रिवर्स हैं, चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज और ब्यास, राइट। सो ब्यास जो है ऑलरेडी सतलुज में कंटेन्ड है। तो ये 5 रिवर्स हैं इन द पंचनद एंड पंजाब इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, वी हैव सीन दिस। एंड सप्त सिंधु जो टर्म है वो ऋग्वेदा में कई बार आई है। तो सप्त सिंधु का मतलब है 7 नदियां, और 7 नदियां कौन सी? हम तो 6 नदी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, और 7वीं जो रिवर है वो सरस्वती। तो सरस्वती रिवर जो है अभी डिसअपियर हो चुकी है बट इट यूज्ड टू बी देयर इन द सेम रीजन। नाउ लेट अस कम टू द बागलीहार डैम। चिनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है बागलीहार डैम एंड इट हैज द कैपेसिटी ऑफ 900 मेगावाट और ये भी एक रन ऑफ द रिवर हाइडल पावर प्रोजेक्ट है इन रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K ऑन चिनाब रिवर and it was conceived in 1992, completed in 2008, inaugurated by PM Manmohan Singh। And run of the river type hydroelectricity project is a type of hydroelectric generation plant whereby little or no water storage is provided, this we have explained you earlier, right। और बाकी के जो 2 डैम है वो है सलल डैम विच इज ऑल्सो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। सो इन सब कंट्रोवर्शियल रिवर्स के ऊपर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स ही बनाए जाते हैं। देन उसके बाद में रातले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट और दूलहस्ती हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट ऑन
चंद्रा रिवर, चंद्रा और भाका दो जो रिवर्स हैं उसमें से चंद्रा रिवर के ऊपर ये डैम बनाया गया है, दूलहस्ती, एंड इट वाज कमीशन्ड इन 2007. सो यू कैन सी दिस मैप. नाउ लेट अस कम टू रावी रिवर. सो रावी के ऊपर आते हैं. 720 किलोमीटर इज द लेंथ, और इसका जो एंशिएंट नेम है दैट इज पुरुषनी, जो ऋग्वेदा में इसको पुरुषनी कहा गया है. और इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं ऐरावती, दैट इज द सेकेंडरी नेम. और इसका जो ओरिजिन है वो कुल्लू हिल्स में होता है, नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश, एंड इट फ्लोज through Chamba Valley and then it takes a southwesterly turns and cuts a deep gorge at धौलाधार, और फाइनली ये चिनाब रिवर में मिलती है नियर रंगपुर इन पाकिस्तान. और इसमें दो डैम्स लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट डैम्स. पहला है थियन डैम जो कि लोकेटेड है रावी रिवर के ऊपर, और इसका जो रिजर्वायर है उसे कहा जाता है रंजीत सागर, राइट. एंड इट इज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ पंजाब. पंजाब का सबसे बड़ा डैम ये है थियन डैम. उसके बाद में चमेरा डैम जो है वो दूसरा डैम है जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, राइट. एंड दिस डैम फुलफिल्स हाइड्रोइलेक्ट्रिक नीड्स ऑफ द रीजन. सो हिमाचल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है एक्चुअली, राइट. उसमें इलेक्ट्रिसिटी जितनी कंज्यूम होती है उससे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है. सो देयर इज वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन केबीसी व्हिच वाज आस्क्ड इन केबीसी क्वेश्चन नंबर 12, तो ज्यादा पैसों का सवाल ही होगा, राइट. So what was the question? Which of the following rulers fought a famous battle on the banks of Jhelum River? So the correct answer is Alexander and Porus, right? So this is related to our subject, so I thought I'll put this here, right? And there is another question: which river did the soldiers of Alexander refuse to cross during his Indian campaign, which caused the Greeks to withdraw, right? So कौन सी river को देख के Greeks वापस चले गए थे, और उसका आंसर है ब्यास river, right? So we have seen these two. So Battle of Hydaspes and the river Hyphases, after which the Greek retreated. Okay. और उसके बाद में हम देख लेते हैं अपना ब्यास रिवर. ब्यास रिवर इन सब में सबसे छोटी है, 470 किलोमीटर की लेंथ है. एंशिएंट नेम है विपासा, और ग्रीक नेम जो है उसका वो है हाइफेसिस. तो हाइफेसिस हिडाप्सिस, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से उसको पढ़ लीजिए. ओरिजिन जो है उसका वो ब्यास कुंड है नियर रोहतांग पास. रोहतांग का मतलब होता है द हिल ऑफ कॉप्सेस, मतलब शवों का पहाड़, राइट. सो रोहतांग पास काफी दुर्गम स्थान हुआ करता था पहले, तो उसको पास करने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए बहुत मुश्किल हुआ करती थी, तो लोग वहां पे कई डेथ हो जाती थी, इस वजह से उसका नाम ही पड़ गया रोहतांग. रोहतांग का मतलब होता है द हिल ऑफ कॉप्सेस, राइट. एंड अभी तो वहाँ पे एक टनल बन गई है, एंड इट इज एट हाई एल्टीट्यूड, राइट. सो हाई एल्टीट्यूड टनल एक बनी है रिसेंटली वहाँ पे, रीड अबाउट इट. एंड इट इज प्रेजेंट इन द पीर पंजाल रेंज, राइट. सो ब्यास कुंड जो है वो पीर पंजाल रेंज में है, और दिस इज द ओरिजिन ऑफ ब्यास रिवर. और सतलज में ये मर्ज होती है रिवर, ब्यास रिवर, फाइनली नियर द हरिके, राइट. सो हरिके में एक बराज है, और उस बराज से इस वाटर को डाइवर्ट करके इंदिरा गांधी कैनाल में भेजा जाता है, विच इज द लाइफ लाइन ऑफ अ पार्ट ऑफ राजस्थान, राइट. एंड ओनली रिवर, दिस इज द ओनली रिवर इन द इंडस सिस्टम दैट कंप्लीटली इज विद इन द इंडियन टेरिटरी. इंडियन टेरिटरी में ये रिवर है, वहीं ओरिजिनेट होती है और वहीं सतलज में जाके मर्ज हो जाती है, राइट. एंड इसके ऊपर लोकेटेड है पोंग डैम. द डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर ब्यास इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट. हिमाचल में देखिए कितने सारे डैम्स हैं. द वाटर रिजर्वायर क्रिएटेड बाय द डैम is called Maharana Pratap Sagar, right, and it is a Ramsar wetland site. So you have to tell us what is Ramsar site, right. And let us come to the last river, which is the Satluj river, right. So Satluj river की total length जो है वो है 1450 किलोमीटर, और इसका एंशिएंट नेम है सुतुद्री, जो ऋग्वेद में हमें मिलता है इसका नाम सुतुद्री. एंड इसका जो ओरिजिन है वो है राक्षस ताल इन तिब्बत. वी हैव सीन दिस नियर मानसरोवर लेक, एंड इट एंटर्स इंडिया थ्रू शिपकीला पास, राइट. सो एंड बाय द वे देयर आर टू वेज टू रीच मानसरोवर. मानसरोवर की जो यात्रा होती है दो रास्तों से होती है, एक है नाथुला पास, और दूसरा आपको बताना है विच इज द अदर पास, राइट. सो नाथुला पास इज लोकेटेड इन सिक्किम, और ये जो रास्ता है ये थोड़ा लंबा रास्ता है मानसरोवर लेक तक पहुंचने के लिए, बट इजी है, मोटरेबल है. और जो दूसरा रास्ता है वो एक शॉर्टकट है, बट वहां पे गाड़ियां नहीं जा सकती. सो यू टू टेल विच इज द अदर अल्टरनेट रूट टू रीच मानसरोवर लेक, राइट. मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं लोग, कैलाश मानसरोवर यात्रा. यहीं पर कैलाश पर्वत लोकेटेड है इसके पास ही, विच इज कंसिडर्ड एज द होम ऑफ लॉर्ड शिवा. एंड देन इट एंटर्स पंजाब प्लेन्स, राइट. और ब्यास रिवर जो है वो अमृतसर के पास हरिके में इससे मर्ज होती है, राइट. और उसके बाद में इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है, और फिर वो पाकिस्तान में सतलज जो है वो एंटर करती है, और फिर फाइनली सतलज जो है वो जाके चिनाब में मिलती है नियर बहावलपुर इन पाकिस्तान. एंड इट इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 रिवर्स इन पंजाब, और इसके ऊपर ही लोकेटेड है भाखड़ा नंगल. वी हैव सीन भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा इन हिमाचल प्रदेश एंड नंगल इन पंजाब. एंड इसका जो रिजर्वायर पीछे बनता है गोविंद सागर, दैट ऑल्सो वी हैव सीन, थर्ड लार्जेस्ट इंडिया में. और नाथपा जाकरी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पर ही लोकेटेड है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ऑल्सो. एंड इंदिरा गांधी कैनाल ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, राइट. सो दिस पॉइंट is also completed, and we have also provided a picture of schematic diagram of this particular canal. काफी इंपॉर्टेंट कैनाल है एक्चुअली. जो लोग राजस्थान के होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे, फॉर देम दिस कैनाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो ब्यास रिवर जो है वो इस तरफ से आती है, सतलुज रिवर यहाँ से आ रही है, और उसके बाद ये हरिके बराज जो है वो
पानी को यहाँ पे डाइवर्ट कर देता है, और बाकी की जो सतलुज रिवर जो होती है वो यहाँ पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, और पाकिस्तान इसमें ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता कि आपने यहाँ पे क्यों पानी को डाइवर्ट कर दिया, नाउ इट इज नॉट कमिंग इनटू पाकिस्तान, नो, बिकॉज आपके पास कौन सी रिवर्स हैं, आईजेसी, हमारे पास कौन सी रिवर है, आरबीएस, रावी, ब्यास एंड सतलुज, राइट, सो वी कैन डू एनीथिंग व्हाट वी वांट टू डू विद सतलुज, रावी एंड ब्यास। और अगर आपको ये रिवर्स याद रखनी है तो एक आपको छोटा सा शॉर्टकट बता देते हैं, राइट, सो एक निमोनिक बता देते हैं। निमोनिक है आई जम्प्ड ऑन द चेयर, I jumped on the chair to reach the bookshelf. Bookshelf. Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Byas, and Satluj. Right. So you can remember these rivers in the same sequence, west to east, by this acronym. Right. So thanks a lot for your patience, for the patient hearing. I hope this lecture has helped you in some way. Right. So please provide your feedback in the comment section, and please answer to the questions what we are asking in the during the lecture. Right. So we'll see you soon with another lecture. Till then, take care. Bye bye, and prepare well.